یہ کہ خداوند نے آج پھر ہمیں زندہ رکھا، سانسیں دی کہ ہم اس کے کلام کو آج سیکھ سکیں اور اس کی زندگی سے بھری ہوئی باتوں کو جو کہ ہمارے لیے راہ کا چراغ ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے، ان کو ہم سن سکیں۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے جو ٹاپک سیکھنے کو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک جو ہے وہ ڈیوائن فیور کے حوالہ سے ہے۔ ڈیوائن فیور ایک ایسی مدد جو کہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے مہیا کی جاتی ہے، الہی مدد، مطلب ایسی کوئی خدا کے مہر کی نظر، اس کا فضل، اس کا کرم جو ہمارے اوپر ہوتا ہے، اور جب خدا کی طرف سے یہ مدد ہماری زندگیوں میں ٹھہر جاتی ہے تو یہ ایسی ایک ڈیوائن پاور ہوتی ہے جس کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ اور جب خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ہمارے اندر، ہماری زندگیوں میں جو کام ہوتے ہیں، جب خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ہمارے اندر کام ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں جو خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولیں گے اور اس میں سے ہم دیکھیں گے یسایہ کی کتاب، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 چیپٹر ہے اور اس کی ورس 11۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے: اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ یہاں پر خداوند کا یہ ایک وعدہ بھی ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ آسمانی خدا جو ہے وہی ہمیں مہیا کر سکتا ہے، اور اس میں وہ اپنے مہر کی نظر کی بات کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے، خداوند یسایہ نبی سے کہتا ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ میں سدا تیری رہنمائی کروں گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کروں گا۔ اور وہ خداوند جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں یہ بھی بات ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہی ہماری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، مطلب وہ ہماری صحت کو بحال رکھے گا۔ اور پھر خداوند کا پاک کلام ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے کہ ہم اس باغ کی مانند ہو جائیں گے جو سیراب ہوتا ہے، سیراب ہوتا ہے، اور وہ اس چشمہ کی مانند ہوگا جس کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خداوند کی اس مدد کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، اس ڈیوائن فیور کو ہم ریسیو کرتے ہیں جو خداوند کی طرف سے ہوتی ہے، تو ہمارا کپ اوور فلو ہو جاتا ہے، مطلب جو ہماری زندگیاں ہیں ان کا پیالہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اور جب ہماری زندگی میں خداوند کی برکت کا پیالہ لبریز ہوتا ہے تو ہماری وہ برکت صرف ہم تک ہی نہیں رہتی بلکہ ہم وہ برکت دوسروں کو بھی ٹرانسفر کرتے ہیں، جیسا کہ خداوند کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ وہ اس چشمہ کی مانند ہے جس کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا، مطلب پانی جو ہے زندگی کا پانی، جب ہمارے اندر روح القدس کے پانی کی ندیاں پھوٹتی ہیں اور جب خداوند کی فیور ہمارے اندر آتی ہے تو پھر ہم دوسری زندگیوں کو بھی سیراب کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم خداوند کے اس کلام کو ایک سٹوری کے ذریعہ سے سیکھیں گے، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک سٹوری خداوند کے کلام میں سے، اور وہ سٹوری یوسف کی ہے۔ یوسف کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ یعقوب کا اور راحل کا بیٹا۔ تو پیدائش کا اگر ہم چیپٹر 37 ریڈ کرتے ہیں تو اس میں ساری جو سٹوری ہے یوسف کی اور اس کے بھائیوں کی سٹوری لکھی ہوئی ہے۔ یوسف جو ہے وہ اپنے باپ کا سب سے پیارا بیٹا تھا، لاڈلا بیٹا تھا، اور یوسف کے لیے آج ہم اس کلام میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے خداوند نے یوسف کو ڈیوائن فیور دی، اس کی زندگی میں اپنی ڈیوائن فیور کو پورا کیا، اور کس طرح سے خداوند نے اس کو مشکلات میں اس کی رہنمائی کی، اور کس طرح خداوند نے یوسف کی زندگی میں یوسف کو اس باغ کی مانند کیا جو سیراب تھا، اور کس طرح خداوند نے یوسف کی زندگی میں اپنی ڈیوائن فیور کو پورا کرتے ہوئے اس کو اس چشمہ کی مانند بنا دیا جس کا پانی کبھی بھی کم نہ ہوا۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ یوسف جو ہے جب وہ 17 سال کا تھا تو اس وقت جب اس کو خواب آتے ہیں اور وہ اپنے باپ سے اور اپنے بھائیوں سے شیئر کرتا ہے تو اس کے باعث جو اس کے بھائی تھے وہ اس سے جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کا باپ جو ہے وہ پھر بھی یوسف کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ یوسف جو تھا وہ اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کے ان برے کاموں سے آگاہ کرتا تھا جو وہ اپنے باپ کی غیر موجودگی میں کرتے تھے۔ تو جب یوسف کے بھائی جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں چرانے کسی دور دراز
जाते हैं जगह में, तो उसका बाप यूसुफ का बाप उसको भेजता है ताकि वो उनको खाना दे और उनकी खबरगिरी करे। तो जब यूसुफ जाता है अपने भाइयों की मदद करने के लिए, उनको खाना देने के लिए, तो वहाँ पर उसके भाई जो हैं उसको बेच देते हैं। उसको उसके ऊपर उसकी हलाकत के लिए मंसूबा बनाते हैं और यूसुफ को जो है वो पहले तो वो घड़े में फेंक देते हैं, कुएँ में फेंक देते हैं, उसके बाद फिर वो उसको एक इस्माइली जो काफ़िला था, उसके हाथों में 20 रुपए में बेच देते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम सब जब मैं इस एग्ज़ाम्पल को शेयर कर रही हूँ, तो इसका शेयर करने का मकसद ये है कि जो वर्ड्स मैंने पहले पढ़ी, हम इस वर्ड्स को यूसुफ की ज़िंदगी के साथ कंपेयर करेंगे कि किस तरह से यूसुफ की ज़िंदगी में डिवाइन फ़ेवर, जो कि एक खुदा की इलाही मदद थी, जो कि खुदावंद का एक डिवाइन प्लान था, किस तरह से यूसुफ की ज़िंदगी में पूरा हुआ। तो यूसुफ जो है वो उस काफ़िले के हाथों जब बेच दिया जाता है, तो तब क्या होता है कि यूसुफ जब मुल्क मिस्र में एक गुलाम बनकर जाता है, तो वहाँ पर मिस्र में जाते ही वहाँ पर एक पोतीफर नाम का एक शख्स था, जिसने यूसुफ को खरीद लिया और यूसुफ को उसने अपने घर में रखा, ताकि वो उस घर में नौकर की हैसियत से रहे। लेकिन अगर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, तो पैदाइश की किताब उसका 39 चैप्टर उसमें लिखा हुआ है, और खुदावंद यूसुफ के साथ था। क्या लिखा है वो, कि खुदावंद जो है वो यूसुफ के साथ था। यानी खुदावंद ने जो वादा किया, यहाँ पर जो यसाया की किताब में हमने पढ़ा कि खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा, बिल्कुल खुदावंद ने उसी तरह यूसुफ की ज़िंदगी में अपने इस कलाम को पूरा किया। और लिखा कि जब वो एक गुलाम बनकर जाता है मिस्र में पोतीफर के घर में, तो लिखा हुआ है कि खुदावंद यूसुफ के साथ था और यूसुफ को खुदावंद ने वहाँ पर इकबालमंद किया और वो अपने आका के घर में खूब इकबालमंद हुआ। और खुदावंद ने जब अपनी डिवाइन फेवर को यूसुफ की ज़िंदगी पर भेजा, इस प्लान को जो खुदावंद की तरफ से था, खुदावंद ने जब यूसुफ की ज़िंदगी पर इस फेवर को भेजा, बड़ी डिवाइन फेवर को भेजा, तो उसमें जो है यूसुफ जो है वो जब पोतीफर के घर में रहता है, तो जब पोतीफर के घर का हर एक चीज़, खेत में, उसके माल-मवेशी में, हर एक चीज़ में खुदावंद ने यूसुफ की वजह से पोतीफर को बरकत देना शुरू कर दी। और उसके वसीला से पोतीफर ने जाना कि खुदावंद की डिवाइन फेवर, जो कि इंसान की तरफ से नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लश्करों के खुदावंद की तरफ से है, वो फेवर यूसुफ के ऊपर है। यहाँ पर अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम खुदा की डिवाइन फेवर में होते हैं या खुदा के डिवाइन प्लान में होते हैं, तो फिर हमें लोगों को बताना नहीं पड़ता कि हमारे अंदर, हमारे ऊपर खुदा की फेवर है। बल्कि वो काम जो हमारी ज़िंदगी में हो रहे होते हैं, उनके वसीला से खुदा जो है, जब फेवर अपनी हमारी ज़िंदगियों में भेजता है, तो दूसरे लोग जानते हैं, दूसरे लोग देखते हैं कि इनके ऊपर खुदा की फेवर है, जिसके वसीला से खुदावंद जो है दूसरों को भी हमारी वजह से बरकत देता है। इसी तरह अगर आगे चल के देखते हैं, तो यूसुफ जो है वो मिस्र में गुलाम की हैसियत से जाता है और उसके बाद जब वो पोतीफर के घर में ही था, तो फिर उसके बाद उसकी बीवी ने जब उसको ज़िनाकारी के लिए कहा, लेकिन यूसुफ जो था वो खुदावंद से डरता था और उसको पता था इस चीज़ का कि खुदावंद की फ़ेवर उसके साथ है, इसीलिए वो इक़बालमंद हुआ। तो उसने ज़िनाकारी को छोड़ा वहाँ पे और वो भाग गया, क्योंकि उसको पता था कि अगर मुझे कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन खुदावंद जो आसमान पर है, वो आसमान से मुझे देख रहा है, जिसकी बरकत, जिसकी फ़ेवर मेरे साथ है। और उसने वो उस ज़नाकारी से वहाँ से वो भागा और उसने जाकर उसने जो है पोतीफर की बीवी से पीछा छुड़ाया, अपना ज़िनाकारी से पीछा छुड़ाया। हालाँकि इसका रिज़ल्ट जो है यूसुफ के लिए अच्छा ना निकला, क्योंकि फिर उसको कैदखाना में डाल दिया गया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यूसुफ जो था उसने कोई शिकायत नहीं की खुदावंद से, बल्कि जब वो कैदखाना में डाला गया, तो फिर आगे इसी चैप्टर को पढ़ते हुए जाएँ, तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने कैदखाना में फिर यूसुफ को जो है सरफ़राज़ किया। वो किस तरह से? क्योंकि जब यूसुफ के साथ जो कैदी थे, उन्होंने जब ख्वाब देखे, तो खुदावंद की तरफ से फिर डिवाइन फ़ेवर जो है यूसुफ की ज़िंदगी में आई और खुदावंद ने उसको उन सारे ख्वाबों की जो ताबीर थी वो बताई और खुदावंद के रूह ने बताया कि किस तरह से आगे चल के जो उनको ख्वाब आए हैं, किस तरह से ये प्रैक्टिकल होगा। तो यूसुफ जब उनको ख्वाबों की ताबीर बताता है, तो एक दफ़ा फिर खुदा की डिवाइन फ़ेवर जो है यूसुफ की ज़िंदगी में पूरी हो जाती है। और इसी तरह से फिर जब आगे चल के यूसुफ को बादशाह को जब ख्वाब आता है और यूसुफ फिर बादशाह के ख्वाब की ताबीर करता है, तो इस तरह से यूसुफ जो है वो, जो कि एक गुलाम की शक्ल में मुल्क मिस्र में गया था, वो वहाँ पर जाकर तो हाकिम बन गया
اور ये खुदावंद की एक डिवाइन फेवर थी। किस तरह से खुदावंद ने उसको मुल्क मिस्र में पहुँचाया एक गुलाम की सूरत में, लेकिन जब वो वहाँ पर रहना शुरू हुआ तो खुदावंद का हाथ उससे कभी जुदा नहीं हुआ। खुदावंद की फेवर उससे कभी जुदा नहीं हुई और खुदावंद ने उसको एक गुलाम से लेकर एक हाकिम तक जो बनने की उसकी स्टोरी थी, सारे टाइम में खुदावंद उसके साथ रहा और खुदावंद ने उसको जो है बड़ी इज़्ज़त बख्शी मुल्क मिस्र में जाकर। और इसकी ज़िंदगी में अगर हम देखें जब उस मुल्क में खुश्क साली आने को थी, बड़ा कहत पड़ने को था, तो तब भी खुदावंद ने ही अपने रूह के वसीला से, अपनी डिवाइन फ़ेवर के वसीला से उसे पहले से आगाह कर दिया और जो सारा कंट्रोल था बादशाह ने यूसुफ के हाथ में कर दिया। और जैसा यशायाह में हमने पढ़ा कि खुश्क साली में वो तुझे सैर करेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब उस मुल्क में कहत पड़ा तो यूसुफ को अब यूसुफ के वसीला से पूरा मुल्क बचाया गया। यूसुफ के वसीला से सारे मुल्क जो आस-पास के मुल्क थे वहाँ सब में कहत था, खुश्क साली थी, लेकिन खुदावंद ने जब अपनी डिवाइन फ़ेवर को, डिवाइन प्लान को यूसुफ की ज़िंदगी में पूरा किया, तो खुदावंद ने ना सिर्फ़ मुल्क मिस्र को बचाया, बल्कि यूसुफ के वसीला से दूसरे मुल्कों को भी अनाज मुहैया किया गया। जब उसके भाई उसके पास आते हैं अनाज लेने के लिए, तो इस तरह से यूसुफ ने अपने भाइयों की भी मदद की। इसका मतलब ये है कि जब यूसुफ जो है वो उसका प्याला जो उसकी ज़िंदगी का जो प्याला था वो लबरेज़ हुआ, उसकी बरकत जो है वो दूसरों तक पहुँची, जो कि उसने अनाज की शक्ल में अपने भाइयों को, अपने बाप को पहुँचाई। तो अज़ीज़ों ये सारा खुदावंद का कलाम शेयर करने का मकसद मेरा ये है कि जब हम खुदावंद के साथ वफ़ादार रहते हैं और हम खुदावंद के डिवाइन प्लान के अंदर रहते हैं, तो फिर ही हम ये सारी बातें रिसीव कर सकते हैं। जैसे यूसुफ जो है वो खुदावंद के डिवाइन प्लान में रहा और उसने खुदावंद की डिवाइन फ़ेवर को जो कि एक ऐसी फ़ेवर है जब जो डायरेक्टली खुदावंद की तरफ से आती है आसमान से और ये ऐसी मदद है, ऐसी खुदावंद के मेहर की नज़र हमारे ऊपर होती है कि जिसको हम नहीं समझ सकते, इंसानी सोच नहीं समझ सकती, लेकिन वो ऐसी मदद होती है कि जिसके वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। जब हम गुलामी की शक्ल में होते हैं, तो हम आज़ाद हो जाते हैं। जैसे यूसुफ गुलाम बनकर आया था लेकिन खुदावंद ने उसको अपनी डिवाइन फ़ेवर के मुताबिक अपनी डिवाइन फ़ेवर को यूज़ किया उसकी ज़िंदगी में और उसको एक हाकिम बना दिया। इसी तरह खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में भी डिवाइन फ़ेवर को भेजता है, लेकिन हमें सिर्फ़ पहचानने की ज़रूरत है कि ये मदद जो खुदावंद की तरफ से आ रही है, हम इसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। आज हम खुदावंद के इस कलाम को देखेंगे और सीखेंगे कि आज अगर हम भी यूसुफ की तरह इस डिवाइन फ़ेवर को अपनी ज़िंदगियों में लेना चाहते हैं, तो हम किस तरह से इस फ़ेवर को अपनी ज़िंदगी में एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ़ ये सुन लें कि डिवाइन फ़ेवर कोई प्लान है, तो हम ये डिवाइन फ़ेवर अपने अंदर नहीं ले सकते। तो इसलिए इस फ़ेवर को हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम सीखें पहले कि ये फ़ेवर जो है, जो खुदावंद की तरफ से है, इसको किस तरह से हम अपनी लाइफ़ में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यूसुफ की ज़िंदगी की तरफ ही चलते हैं कि जब यूसुफ जो है वो बेचा गया और उसके भाइयों ने उस पर एक तरह से उसकी हलाकत का मंसूबा बनाया, तो यूसुफ ने खुदावंद से शिकवा नहीं किया, उसने खुदावंद से शिकायत नहीं की, बल्कि उसकी जो बातें हैं वो थैंक्सगिविंग की थी और वो खुदावंद के हुज़ूरी में शुक्रगुज़ारी के साथ चलता रहा। तो इसलिए अगर आज हम भी इस फ़ेवर को एक्टिवेट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगियों में, तो हमने खुदावंद की हुज़ूरी में थैंक्सगिविंग करनी है। अगर दूसरी बात देखें तो हमारी वफ़ादारी जो है, वो डिवाइन फ़ेवर को और खुदा के डिवाइन प्लान को हमारे लिए एक्टिवेट कर सकती है। अगर हम खुदा के साथ फ़ेथफुल रहेंगे, हमारी फ़ेथफुलनेस जो है खुदावंद की हुज़ूरी में होगी, तो खुदावंद यकीनन अपनी जो डिवाइन फ़ेवर है, उसको हमारी ज़िंदगी में नाज़िल करेगा और फिर हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि जो भी हमारा बहन-भाई या जो लोग हमें देखेंगे, वो खुद जानेंगे कि इसके अंदर खुदावंद की डिवाइन फ़ेवर काम करती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो खुद बोलेंगी। हमें फ़ेथफुल रहना है खुदा के साथ। हम जब ये सोचें कि हमारे साथ हमें कोई नहीं देख रहा, कोई गुनाह हमारे सामने आ जाए, कोई आज़माइश हमारे सामने आ जाए, ज़िनाकारी आ जाए, कोई ऐसी मूवीज़ आ जाएँ, ऐसा कुछ भी आ जाए, तो हम ये ना सोचें कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक हस्ती है जो हर वक़्त हमें देखती है। तो अगर हम उस वक़्त उन आज़माइशों से निकल जाएँ, इस चीज़ को सोचते हुए कि अगर हमने आज ये काम कर लिया, तो हमारे साथ खुदावंद की फ़ेवर नहीं रहेगी, तो हम ज़रूर ही अपने खुदावंद की फ़ेवर को हासिल कर सकते हैं। इस बात को सोचते हुए कि खुदावंद हर वक़्त हमें देखता और उसकी आँखें हमारी तरफ लगी रहती हैं।
और अगर हम अपने खुदावंद के साथ वफ़ादार रहते हैं, ओबीडियंस में रहते हैं, खुदावंद के हुक्मों पर चलते हैं, तो हम इस डिवाइन फ़ेवर को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हम खुदावंद के प्लान के मुताबिक चलें, जो कि खुदावंद का एक हेवनली प्लान है, एक डिवाइन प्लान है, उसके अंदर रहते हुए, शुक्रगुज़ारी करते हुए, खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हुए, उसके साथ वफ़ादारी करके और उसके ओबीडियंस रहते हुए हम जो है, उसकी डिवाइन फ़ेवर को हासिल कर सकते हैं। और जब हम इस फ़ेवर को अपने अंदर हासिल करेंगे, तो फिर खुदावंद और उसका रूह और उसका कलाम हमेशा हमारी रहनुमाई करेगा। जैसे वो यूसुफ के साथ-साथ रहा, भले यूसुफ को आज़माइश का सामना करना पड़ा, भले उसको कैदखाने में रहना पड़ा, मुश्किल हालात देखने पड़े, लेकिन खुदावंद का हाथ उसके ऊपर रहा और खुदावंद ने हर तरह के हालात से उसको निकाला, हर तरह की मुश्किल सिचुएशन से उसको निकाला और उसको इकबाल-मंद किया। क्यों? क्योंकि खुदावंद का वादा है कि वो सदा हमारी रहनुमाई करेगा और भले खुश्क साली का दौर हो, लेकिन खुदावंद जो है वो हमारी जान को सेर रखेगा और वो हमें ऐसे बाग की मानद बना देगा जिसका पानी कभी कम नहीं होता, बल्कि वो सिराब होता है। और जब हम खुदावंद के डिवाइन प्लान में रहते हैं, जब हम उसकी डिवाइन फेवर को हासिल कर लेते हैं, तो फिर हमारी जिंदगियां भी ऐसी हो जाती हैं कि वो जो बरकत हमारे अंदर ठहरती है, वो सिर्फ हमारे तक नहीं रहती, बल्कि वो दूसरी जिंदगियों को भी सैराब करने का बाइस बनती है। तो हम सब खुदावंद के इस कलाम को अपने दिल में रख लें और इस बात को हर रोज़ जो है हम खुदावंद के कलाम को लेकर साथ चलें, ताकि खुदावंद हमें कसरत से बरकत दे और उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।